Hello everyone, I am Sulekha Sharma and today I am going to explain the sample paper of physics which was published by Cbse this year. It will help you all in the preparation of class 12th board examination. Okay. With the help of this sample paper, you can analyze that your priority, your importance, your focus on which chapter is more. And at the last of this video, I will tell you about chapter-wise distribution of marks according to this sample paper. So let us start the analysis of this sample paper. Okay. This year again, the time allowed is 3 hours. You can easily see in here. And maximum marks is also 70 marks. There is no change in time and marks. But there are changes in total number of questions and patterns are also changed. Let us discuss all these things in detail. This year, here there are only 33 questions in all, okay, and in the last year there was 37 questions, okay, and only 4 sections are there, and in this sample paper there are 5 sections A, B, C, D and E. So I think कुछ questions तो कम हो गए हैं, but let us see what is the difficulty level of this sample paper. So in section A, it contains 10 very short questions answers, 10 very short question answers, and 4 assertion reasoning is included also, which is of MCQ type, 1 marks each. So it means section A contains total 10 plus 4, 14 marks, right? Again in section B, we have 2 case-based questions of 4 marks each. It means 2 case study, some paragraphs are given, case study type, and in both case study 4 questions are given, 1 marks each. It means section B contains how much marks? 8 marks. Okay. Then again section C contains 9 short answer questions of 2 marks each. It means section C 9 questions, 2 marks is 18 marks, right? Then section D contains 5 short answer questions of 3 marks each. It means section D has 5 short question answers of 3 marks each. It means section D is of 15 marks, right? And in section E, it contains 3 long question answers of 5 marks each. It means section E is also of 15 marks. So section A 1 marks, 14 marks. Section B case study, 2 case study, 4 marks. It means 8 marks is there. Section C 2 marks questions, 18 marks. Section D 15 marks, and section E again 15 marks. So these are the distribution of section wise marks, okay, and total marks is 70. Now let us analyze each section one by one. So अभी तक सेक्शन ए में 20 MCQs टाइप क्वेश्चंस आते थे जो कि करना थोड़ा सा आसान रहता था, बट इन दिस सैम्पल पेपर देयर इज़ नो MCQ टाइप questions. All questions are of 1 marks each, but it is very easy. All questions are comes from all the 10 chapters one by one, and अगर आप NCERT की books अच्छे से पढ़े हो, concepts clear है, तो easily you can attempt all these 10 questions. It is very easy. Short questions are there. Some internal choices are also there. In that one, you have to attempt any one of them. Like suppose in question number 1, I think name the physical quantity having unit joule per Tesla. You can easily guess, na? You know the joule is unit of which quantity? Tesla is the unit of which quantity? So you can easily guess the answer of this one. Which quantity is there, joule per Tesla? Then again, second question number comes from this chapter 8, electromagnetic spectrum. Okay. Then third question comes from chapter this electron with charge E, and this one it comes from chapter 4. Then again question number 4 comes from chapter this solenoid and alternating current. It means chapter 6 and 7. Then again question number 5, what is the value of angular momentum? It comes from chapter, I think, from 11. Then question number 6, photoelectric experiment. It also comes from chapter 11. Then question number 7, in a decay of free neutron, the elementary, it comes from chapter nuclei, chapter number 12, I think. So, and again question number 8, 9, 10,
All these three questions comes from semiconductor, that is chapter number 14. So अगर अच्छे से पढ़े हो बेटा तो ये 1 मार्क्स क्वेश्चंस आप इजीली कर पाओगे 1 to 10. प्रॉब्लम आपकी आएगी ये नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस में विच इज ऑफ असर्शन रीजनिंग टाइप. लाइक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अटेम्प्ट. पहले एम्स के एग्ज़ाम्स में ये ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस आते थे बेटा, एंड वो एम्स एग्ज़ाम बहुत ही डिफ़िकल्ट लेवल का एग्ज़ाम हुआ करता था, जो कि अभी नहीं होता है, वो बंद हो चुका है. सो इसमें अच्छे अच्छे बच्चे भी जिनका 70% मार्क्स भी आने वाला हो सकता है, मार्क्स कटने के चांस हो 1-2, तो इसको बहुत ईजिली करना है, बहुत ध्यान से करना है. ठीक है, इसमें 4 ऑप्शंस आर देयर. फर्स्ट वन इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ईजिली इसको समझिएगा पहले. बी इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू. ए इज फॉर असर्शन, आर इज फॉर रीजनिंग, एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सी इज ए इज ट्रू बट आर इज false, and fourth one is A is false, R is true. Okay, so इस तरीके से 4 options are there, and आपको 1 by 1 4 questions are there 11 to 14 assertion reasoning. आपको ये ध्यान से पढ़ना है और इसे बताना है कि क्या दोनों ही सही है या एक सही है, या एक सही है उसका रीज़न है दूसरा, या उसका रीज़न नहीं है दूसरा. ऐसे आपको क्वेश्चंस को पहचानने हैं. ठीक है, इसमें भी आपका 11th and 12th these 2 questions comes from chapter 1 electric field is there. Okay, and 13 and 14th also comes from convex mirror and convex lens are there. 13 and 14 chapter. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में मिरर इज नॉट इन योर सिलेबस बट स्टिल यू हैव टू स्टडी अबाउट द रिफ्लैक्शन एंड कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर, एवरीथिंग. रिलेटेड पोर्शन से भी इसमें आ गया है एक क्वेश्चन नंबर 13. सो आपको इस पर भी ध्यान देना होगा. ओके, सो इस टाइप से ये 4 क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल हाई है, बट अगर अच्छे से पढ़ते हो तो आप इजीली कर लोगे. नाउ कम टू सेक्शन बी विच इज़ ऑफ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस. ये आपका एक अलग ही टाइप का इसमें इंट्रोडक्शन हुआ है, केस स्टडी टाइप. इससे पहले कभी फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते थे. आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा, देखा होगा पैराग्राफ टाइप, एंड यू हैव टू आंसर्स ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दैट पैराग्राफ. हियर आल्सो पैराग्राफ इज गिवन बट आंसर्स आपको उस पर नहीं मिलेंगे. आंसर्स तभी आप कर पाओगे जब आपका इस पर कंसेप्ट क्लियर होगा. सो 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस है. एक है आपका फैराडे केस जो कि चैप्टर 4 से आया हुआ है. ओके, इसमें भी आपके 4 पार्ट्स आ देयर. आप इजीली कर सकते हो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. एंड अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है स्पार्किंग ब्रिलियंस ऑफ डायमंड विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ओके, इसको भी आप जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़े हो तो उसके टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा, उसके एप्लीकेशंस. ये आपका बिल्कुल एनसीईआरटी बुक का पेज है. मैं बुक पेज नंबर भी सॉल्यूशन बताऊंगी इसका, तो बताऊंगी किस पेज नंबर से है, तो आप इजीली इसको भी कर सकते हो. सो ए और बी में थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है. अदर सेक्शन सी डी एंड ई आर सेम एज इट इज़. जैसे पहले आया करता था 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन. सो सी डी एंड ई मेरी तो यही सजेशन है कि आप लोग पीछे से शुरू करो अटेम्प्ट करना, सी डी एंड ई पार्ट, जो कि आप इजीली कर सकते हो. देन you attempt section A and B. So in section C, first question 17 question number, and it is directly come from the NCERT book. I think this question number 17 is from chapter 4th chapter. Okay, this 17 question is from 4th chapter. Question is to a straight infinitely long wires. You can easily attempt this one. ये बुक का है बेटा, मुझे मालूम है. एनसीईआरटी बुक आप अच्छे से पढ़िए. क्वेश्चन नंबर 17 आपके 4th चैप्टर का है. देन क्वेश्चन नंबर 18 इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. अगेन इट कम्स फ्रॉम दिस वेव ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 10. ये भी आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो 2 मार्क्स में. देन अगेन क्वेश्चन नंबर 19. It comes from this one chapter 2 I think. This is an expression for potential energy of a system of 2 particles, charges Q1 and Q2,
R1 and R2 दिस एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इट्स वेरी इजी, चैप्टर 2 से बेटा आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19, आप इसको भी इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम फॉरवर्ड बायस, इट कम्स फ्रॉम चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर। बहुत इजी है बेटा, फॉरवर्ड बायसिंग से क्वेश्चन आया है। देन क्वेश्चन नंबर 21, ये आपका बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, कॉइल ऑफ वायर इनक्लोजिंग एन एरिया। दिस न्यूमेरिकल्स कम्स फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक्स। मैं बताऊंगी किस पेज नंबर का, एग्जैक्टली ये एनसीईआरटी से आया हुआ है, ठीक है बेटा। बहुत इजी है इनको सॉल्व करना, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। 21 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 22, टू वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। अगेन दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स से ज़्यादा वेटेज का क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, और बहुत ईजी है, आप लोग करोगे इसको अच्छे से पढ़िए, आराम से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर पाओगे। अगेन क्वेश्चन नंबर 23, एनर्जी बैंड डायग्राम, ये भी बेटा सेमीकंडक्टर चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन है, बुक का है, फॉरवर्ड बायसिंग का, आराम से कर सकते हो। Then question number 41, define the terms magnetic inclination horizontal component of Earth's magnetic field. बेटा chapter number I think this comes from 24 question comes from chapter number I think which chapter 5 chapter, जिसमें कि एक यही important question बनता है आप लोग का, हर टीचर ने बताया होगा Earth's magnetic field के elements। तो यहाँ पे दिया हुआ है magnetic inclination horizontal component of Earth's magnetic field को बेटा डिफाइन करना है, और इसका रिलेशन आप लोगों को टीचर ने कराया होगा। और इसी के बेस पे और ऑप्शन में एक न्यूमेरिकल भी है जो कि बहुत इजी है, इसको भी आप इजीली कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये सब दिया हुआ है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन विच इज ऑफ 2 मार्क्स, 25 क्वेश्चन, राइट टू कैरेक्टर्स द इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ ए थिन कॉन्वेक्स लेंस। सो कॉन्वेक्स लेंस को भी आपको डिटेल में पढ़ना होगा, आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ लेंस मेकअप फार्मूला, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेस है, लेकिन आपको इमेज फॉर्मेशन भी आपको सारे प्लेसेस के पढ़ने होंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 27 में बेटा वो भी आया हुआ है, ठीक है। सॉरी, नॉट क्वेश्चन नंबर 27, 25 में। ओके, इस तरीके से आप जितने भी क्वेश्चन सेक्शन सी में है इजीली आप 9 क्वेश्चंस 2 मार्क्स वाले कर सकते हो। नाउ कम टू सेक्शन डी जो कि 3 मार्क्स के क्वेश्चंस है। इसमें भी देखेंगे हम कि जो क्वेश्चन नंबर 26 है रेक्टेंगुलर लूप, आप लोगों ने बहुत ध्यान से फिगर को देखिए, आप लोगों ने बुक में इसको देखा होगा, राइट ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपको टीचर्स ने करवाया होगा ईजिली। आप ये आपका चैप्टर 6 का है बेटा, ईजिली आप इसको कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है जो कि आपका बिल्कुल प्रीवियस ईयर से आया हुआ है, चैप्टर 3 का है, वेरिएबल रजिस्टर वाला, ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस, सर्किट डायग्राम बनाना है, यू हैव टू ड्रॉ। तो ये बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सैम्पल पेपर जरूर सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर मीन्स लास्ट 10 ईयर्स के, तो आपको बहुत क्वेश्चन उसी में से मिल जाएंगे जो कि रिपीटेड है इन 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स। और पार्ट में भी आपका इंटरनल इस चैप्टर 3 का ही है, सो चैप्टर 3 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 28, डी ब्रॉगली, क्वेश्चन नंबर 28 इन डी ब्रॉगली आर्गुमेंट टू पर्पज इज हाइपर, डी ब्रॉगली थ्योरी है बेटा, जो कि आपका ये चैप्टर नंबर 11 से आता है। वेरी इजी क्वेश्चन, ड्यूअल नेचर, आप लोग पढ़ोगे, बहुत इजी है। दोनों क्वेश्चन और पार्ट वाला भी आपका इसी से आया हुआ है, ठीक है। तो इजीली क्वेश्चन नंबर 28 भी कर सकते हो। 29 क्वेश्चन आपका फ्रीक्वेंसी, दिस वन 29 क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 12 से ही आया है बेटा, और ये एडिशनल क्वेश्चन का है क्वेश्चन नंबर 29। इट मीन्स आपको इस बार जो सैम्पल पेपर में एडिशनल क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, तो ये 29 क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी बुक में आपको मिलेगा, और ये एडिशनल क्वेश्चन में दिया हुआ है चैप्टर 12 में। मैं पेज नंबर बताऊंगी जब मैं इसका सॉल्यूशन करवाऊंगी आपको। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 30 आपका न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूज़न का है, जो कि ये भी आपका चैप्टर 13 का है बेटा, तो इसको भी आप इजीली कर सकते हो। मिला जुला के बेटा क्वेश्चन सी, सेक्शन सी एंड डी बोथ 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स डायरेक्टली क्वेश्चंस बुक के पूछे गए हैं, थ्योरी और न्यूमेरिकल्स, तो बहुत इजी है इनको करना, ठीक है। देन कम टू लास्ट पार्ट सेक्शन ई। सेक्शन ई में बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा, 5 मार्क्स 3 क्वेश्चंस आर देयर, इट मीन्स 15 मार्क्स, और जैसा इसमें आया हुआ है वैसे ही आपके फाइनल एग्जाम्स में भी आएंगे, ठीक है। ये 5 मार्क्स क्वेश्चंस किस चैप्टर से आया है, लेट अस सी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 31, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 31। ओके, ये क्वेश्चन नंबर स्टेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेटा, ये आपका चैप्टर
1 से ही आ गया है, ठीक है। ए पार्ट गॉस लॉ एंड बी पार्ट इज ऑल्सो surface charge density again comes from chapter 1. So chapter 1 से बेटा 5 मार्क्स से क्वेश्चन आए हुए हैं, ओके। एंड इन और पार्ट अगेन define electric dipole, give an example, derive an expression for torque experienced by this one, ये भी आपका बेटा चैप्टर 1 से ही आया हुआ। तो चैप्टर 1 आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि 5 मार्क्स से क्वेश्चंस उसमें से आने वाले हैं, ठीक है। अगेन कम टू क्वेश्चन नंबर 32, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर करंट फ्लोइंग इन एन आइडियल कैपेसिटर। ये कैपेसिटर वाला बेटा चैप्टर नंबर 6 नॉट 7 अल्टरनेटिंग करंट से है। एंड और पार्ट भी इसका बेटा एसी जनरेटर एवरीथिंग 6 और 7 क्वेश्चंस को मिला के आपके चैप्टर क्वेश्चन नंबर 32 जो कि 5 मार्क्स का है आपका 6 और 7 चैप्टर से आया हुआ। तो इसको भी आप इजीली कर लोगे। लॉन्ग क्वेश्चंस तो टीचर्स आपको बता भी देते हैं इंपॉर्टेंट क्या क्या आने वाला है, उसको आप अच्छे से कर लीजिए। ये तीनों आपके 5 मार्क्स वाले बहुत ईजी है, स्कोरिंग है। आप तो मेरी यही सजेशन है कि आप लोग पीछे से क्वेश्चन करना स्टार्ट करें, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 33 which is a wave front diagram showing. This one is from wave optics and or part is also from this telescope optical instruments यानी कि ray optics. So question number 3 आपका optics से आया है। So आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि question number 31, 32 and 33 question number 1 चैप्टर 1 से आया हुआ है बेटा। क्वेश्चन नंबर 32 6 और 7 चैप्टर से मिला के आया हुआ है। एंड क्वेश्चन नंबर 33 आपका दिस चैप्टर नंबर 9 एंड 10 से ऑप्टिक्स से मिला के आया हुआ है। सो इस तरीके से आपका सैम्पल पेपर तैयार हुआ है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि पूरे सैम्पल पेपर को एनालिसिस करने के बाद किस चैप्टर से कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आए हैं। सो दिस इज माय ओवरऑल एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल पेपर released by the Cbse. Hope you all will like and would be beneficial for your future preparation for the board exams. Okay, so in this sample paper in chapter 1 there are 2 questions comes 1 marks each. In chapter 2 1 question of 2 marks and in chapter 3 1 question is of 3 marks. Okay, so this is the analysis of chapter 1 to 3 and there is 1 question of 5 marks which is internal choice chapter 1 और chapter 2 में से choice आया हुआ है 5 marks का। So in this way chapter 1 to 3 कितने marks के हो गए total 5 plus this 2 7 plus 2 9 and this 3 12 marks. So आपका chapter 1 to 3 12 marks का हो गया। इस तरीके से आपको weightage पढ़ना होगा। Okay, again come to chapter 4 5 6 and 7. In chapter 4 there is 1 question of 2 marks and 1 question is of 1 marks. In chapter 5 1 question is of 2 marks, 1 question is of 1 marks. In chapter 6 1 question is of 3 marks, 1 question 2 marks and 1 question is of 4 marks which is of case study type, right? Case study comes from this chapter 6 Faraday case. So इसको आप ध्यान से पढ़िएगा बेटा इसमें क्या है। Okay, and again chapter 7 1 question is of 1 marks and again from this 6 and 7 1 5 marks question comes. Internal choices are there. So in this way 4 5 and 6 7 chapter का weightage बेटा 21 marks है। So इन 4 chapters को भी आपको पढ़ना है, especially 4 5 आपके these two only 6 marks and 6 and 7 out of 21 6 marks 4 5 6 7 chapters जो है आपका बेटा ये 15 marks का है। तो इसको आपको weightage बहुत ज़्यादा है। 6 and 7 chapters आपको ध्यान से पढ़ने हैं इसके हिसाब से, ठीक है। Then come to chapter number 8 9 and 10. In chapter 8 only 1 marks is there. Chapter 9 2 questions 1 marks, 1 question 2 marks and 1 question 4 marks which is case study type. वो भी आपका chapter 9 से ही आया हुआ है case study। अच्छे से देख लीजिएगा, बुक पूरा पढ़ लीजिएगा chapters chapter 9 को। और chapter 10 से भी 2 marks से questions आए हुए हैं 2 इस तरीके से, और 5 marks questions भी आपके 9 और 10 से आए हैं। So total आपका 8 9 10 chapter से 18 marks का बनता है, right? उसके बाद come to this chapter 11 12 13 and 14.
इन 11, 12, 13 एंड 14 ओके 11 से आपका 3 मार्क्स का आया हुआ है, दूसरा आपका 1 मार्क्स का आया हुआ है, ठीक है बेटा, ज़्यादा नहीं है। चैप्टर 12 से भी आपका 3 1 का है, चैप्टर 13 से भी आपका 3 1 का है। इट मीन्स 11, 12, 13 से 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच। 12 आपका इससे हो गया 12 मार्क्स का। सो 11, 12 एंड 13 चैप्टर से 12 मार्क्स का आया है, 4 मार्क्स तीनों चैप्टर से। एंड लास्ट चैप्टर 14 जो कि सेमीकंडक्टर है, इसमें आपके 3 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के आए हुए हैं एंड 2 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के। इट मीन 7 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस इस तरीके से आए हुए हैं। और जब हम सारे को वेटेज करते हैं बेटा तो 1 2 3 12 मार्क्स, 4 5 6 7 21 मार्क्स, then 8 9 10 18 marks, then 11 12 13 12 marks and then 14 chapter 7 marks। तो इस तरीके से आपका 70 मार्क्स का ये सैम्पल पेपर तैयार होता है। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने बहुत मेहनत से बनाया है सैम्पल पेपर को एनालाइज करके कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स से आए हुए क्वेश्चन। आई थिंक इट्स वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे को भी इसका फ़ायदा हो सके। ओके स्टूडेंट्स, अप टू देन वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।